بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 856 مولوی خورشید صاحب کے بیان کا رد۔ امیر مامورین کا امام ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ امیر قوم کا امام ہوتا ہے۔ بندہ کسی بھی درجے کا ہو، وہ نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امیر ہو، خلیفہ ہو، ولی ہو، علی ہو یا حضرات صحابہ ہو۔ لطیفہ: اطاعت میں اللہ، رسول اور امیر، اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منہم، لیکن تنازع پیش آئے تو صرف اور صرف اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ امیر کی یہاں کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، اس لیے وَأُولُو الْأَمْرِ کی شک کو کاٹ کر رکھ دیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اگر تم کسی بات پر جھگڑ چکو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ فائدہ: مولوی خورشید صاحب کے بیان کو سنیں اور جائزہ لیں تو ایک بات بھی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں کتاب اور سنت اور سیرت کی طرف رجوع کیا گیا ہو یا اس کی ترغیب دی گئی ہو۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے عالم ہیں، کیسے انہیں سند فراغت عطا کر دی گئی۔ شریعت افراد پر مقدم ہے۔ ہمارے بڑے حضرت جی مولانا الیاس صاحب ہوں کہ مولانا یوسف صاحب ہوں کہ مولانا انعام الحسن صاحب ہوں کہ مولانا سعد صاحب، یہ نرے بشر اور انسان ہی تو ہیں، اس سے زیادہ ان کی اور کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، حیثیت کے قابل ہے تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اسی کام کی سرپرستی کی وجہ سے ان کی حیثیت ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور بلا شبہ یہ تینوں بزرگ ہمارے امیر تھے۔ ان کی زندگی میں ان کا حکم چلتا تھا، مگر اب موجودہ دور کے منتخب شدہ امیر حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم ہیں۔ اب ہم پر ان کی اطاعت واجب ہے، بلا چوں و چرا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ سابقہ عمرہ کے قول اور فعل کی شرعی حیثیت۔ وحدت: قرآن مجید میں ایک لفظ ہے اعتصام، اس کا معنی ہے گٹھ جوڑ، اتفاق، یکجہتی، یونٹی، اور اس کی ضد ہے تفرقہ، پھوٹ، دراڑ، اختلافات، فرقہ بندی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ عین حکم الہی ہے کہ کسی طرح بھی مسلمان آپس میں نہ بھیڑے اور نہ ہی لڑے اور نہ ہی آپس میں تفرقہ بازی اور پھوٹ ڈالے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ مت ڈالو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ مت ڈالو۔ اس سے پہلے کی آیت میں تقوی اختیار کرنے کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اس امت مسلمہ کی نجات اور اس کی سرخروئی کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے توحید اور دوسرا اتحاد، یعنی وحدت، آپسی اتفاق۔ توحید اور وحدت پر چلنے کا نام تقوی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ ترجمہ: جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے کو اپنانا، اسی پر چلنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لطیفہ: انا و اصحابی، یہ دو لفظ ہیں، اس میں بھی اتحاد کو باقی رکھنے کی تاکید ہے، یعنی ایمان اور عمل بھی ایک جیسا ہو، یعنی ایمان صحابہ والا اور عمل اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مطلوب ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اگر تم ایسا ایمان بنا لو جیسے صحابہ نے ایمان بنایا تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ ہوا ایمان۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔
फ़ायदा, रसूल की कैफियत ईमानी गैर रसूल को मुहैया हो यह आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए गैर नबी यानी सहाबा वाले ईमान को हमारे लिए मेयार बनाया और अमली ज़िंदगी इख्तियार करने के लिए अमल रसूल यानी सुन्नत रसूल को मेयार बनाया और इन दोनों बातों को सही हदीस में यकजा फरमाया। मा अना अलैहि व अस्हाबी। तक़वा हासिल करने के लिए हर बात और हर अमल में ये देखना होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल और अक़ीदा किस तरह का था। हुज़ूर और सहाबा वाले अक़ाइद और अमल कुरान और अहादीस सहिया में मौजूद हैं। हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक आम इंसान ही तो थे। एक है तरतीब इलियासी और दूसरी तरफ तरतीब मा अना अलैहि व अस्हाबी यानी सीरत तैयबा। जब दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना हो तो बग़ैर किसी तरद्दुद और झिझक के मा अना अलैहि व अस्हाबी वाले तर्ज़ और तरतीब को अपनाना होगा। ये बात यकीनन जान लो कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नबी हरगिज़ नहीं थे और उनकी तरतीब दावत मा अना अलैहि व अस्हाबी के 100% मुआफ़िक थी, मगर उनके अपने वक्त के हिसाब से। अब मौजूदा वक्त के एतबार से इलियासी तरतीब में वुसअत की ज़रूरत है और चूँकि मौजूदा अमीर हज़रत जी राबे मौलाना साद साहब हैं तो उन पर जो बात भी खुलेगी अगर वो खिलाफ शरअ न हो तो बहैसियत अमीर उनकी इस बात पर अमल करना दावती अहबाब पर वाजिब है। मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत व बरकातुहुम हो या कोई और, इस वक्त अगर मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत व बरकातुहुम मरकज़ निज़ामुद्दीन को मरकज़ और मौलाना साद साहब की इमारत को दिल से कबूल नहीं करेंगे तो उनका उम्र भर का दावती काम और कुर्बानी सही हदीस की रूह से ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं देंगे, सब इकारत जाएंगी। इसलिए कई अमिया की मुखालिफत बगावत कहलाती है और बागी का कोई अमल कबूल नहीं। सबकी बुज़ुर्गी पर फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत इस्लामी मुक़द्दम है। और याद रखें, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह या मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत व बरकातुहुम की बुज़ुर्गी हदीस नबवी का मतलूब और मायनी और उसका हुक्म तो नहीं बदल सकती, चाहे कितनी ही तावीलात घड़ ली जाए। इसीलिए कि अमीर के बारे में लफ्ज़ अब्द वहशी इस बात की गुमाज़ी करता है कि किसी भी हैसियत का अमीर हो उसकी इत्तिबा के बग़ैर चारा नहीं, कम उम्र का हो कि बूढ़ा हो, अनपढ़ हो कि अल्लामा हो, तरबियत याफ्ता हो या ना हो, शहरी हो या देहाती हो और इलियासी वक्त का हो कि 100 साल बाद वाला हो, वो अमीर है अमीर, हर हाल में उसकी मानी जाएगी। फ़ायदा, बहैसियत तबलीगी हम सब के सब हज़रत जी राबे मौलाना साद साहब के मुत्तबईन और मामूरीन हैं, चाहे वो रायवण वाले हों, ककराइल वाले हों, हिजाज़ वाले हों, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया वाले हों, मौलाना इब्राहिम साहब देवला हों कि मौलाना नज़रुर्रहमान साहब, बहैसियत तबलीगी हम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अमीर यानी मौलाना साद साहब दामत व बरकातुहुम की इताअत लाजिम है और उन्हीं का इत्तिबा किया जाएगा, उन्हीं की बात लेंगे, उन्हीं की बातों का तज़किरा करेंगे। उनके अलावा किसी और को उन जैसा मकाम और अहमियत तो दरकिनार, उसका तसव्वुर भी इस्तिग़फ़ाफ़ इमारत और इस्तिग़फ़ाफ़ अमीर है और इस्तिग़फ़ाफ़ इमारत और अमीर पेश खेमा है अमीर और अमारत से बगावत का। दावती काम के उमूर में किसी की कही हुई बातों पर तवज्जो नहीं देंगे, चाहे वो फतवा हो या नसीहत हो या बयान हो कि हिदायत। दावती उमूर में मरकज़ियत रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। इस इदराक और शऊर के बग़ैर ना तो तबलीग ही समझ में आने की और ना ही तबलीगी काम की बसीरत। वक्त के अमीर के होते हुए साबिक़ा अमीरों की भी इन्हीं बातों को लेंगे जो मुतवातर चली आ रही हो और शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, लेकिन मौजूदा अमीर की बात हर हाल में माननी लाजमी है। हदीस शरीफ में इशारा मिलता है कि फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ ले आएँ तो उन्हें भी मेरी ही इत्तिबा करनी होगी। यानी जिस तरह सारे नबियों पर ईमान रखेंगे लेकिन इत्तिबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेंगे, इसी तरह हज़रत इलियास, हज़रत यूसुफ़ और हज़रत इनामुल हसन साहब की क़द्र व अज़मत से हमारा दिल तो मामूर हो
मगर इताअत सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा अमीर हज़रत जी राबे मौलाना साद साहब ही की करेंगे। मराकिज़ के ज़िम्मेदार अपने बयानों में, मुज़ाकरात में, हिदायत में हज़रत जी मौलाना साद साहब का नाम एहतमाम से लेवें, इनकी बातों को चलावें, ताकि अमीर की अज़मत क़ुलूब पर मुनकिश और चिस्पा हो रही हो। इस तरह के एहतमाम से ख़वास और अवाम के क़ुलूब इज्तिमाइयत के साथ अपने अमीर की तरफ हमतन माइल रहेंगे। ये बातें कलीद है इज्तिमाइयत की, अमीर और मामूर के रिश्ते को जान बख्शने की। हज़रात सहाबा का यही दस्तूर था। तारीख़ी वाक़ियात तंबी दाइयों को हमेशा से तारीख़ी वाक़ियात की वजह से नित नई मुश्किलात का सामना रहा। इन परेशानियों से दूर रखने के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत। ये उम्मत है जो गुज़र गई, जो उसने कमाया उसके लिए वही है, और तुम्हारे लिए वही है जो तुमने कमाया, और तुमसे उनके अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फ़ायदा, दीन मौजूदा वक्त के कामों को ताज़ा तरीन मसाइल की रोशनी में हल करने की तालीम देता है। मौजूदा वक्त के अमीर की हिदायत अगर नाकाफ़ी हो तो फिर असलाफ़ की तरफ देखा जाएगा, और मौजूदा हज़रत जी राबे की हिदायत और तसरीहात और तौजीहात इस कदर तफसील के साथ मौजूद है कि इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत बाकी ही नहीं रहती। इसलिए ज़िम्मेदारान मराकिज़ पर वाजिब है कि हर छोटी बड़ी बात को अख़ज़ करने के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन और वहाँ के बुज़ुर्ग और अमीर मोहतरम की तरफ हमतन मुतवज्जे रहें, वरना वो अपने इलाके के साथियों की कमा हक़्क़हू तरबियत नहीं कर सकेंगे। ये एक मुनज़्ज़म निज़ाम दावत है जो हमने पेश की। जिस शख्स की नज़र में अमीर इमारत सब चीज़ों पर मुक़द्दम है, वो इन हिदायत को कमा हक़्क़हू लेगा, और जिनके क़ुलूब इमारत और अमीर के बारे में ज़ंग आलूद है, वो अपने पैर पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी चलाएगा और ख़ुद को धोखा देने वाला होगा। यकसुई के साथ अपने अमीर की इताअत में कुर्बानियों के साथ चलते रहना, यही हमारा मामूल और यही हमारा वजीफ़ा और यही हमारा शाआर है। रायवंड मरकज़ की हकीकत, रायवंड मरकज़ अपने मुल्क का मरकज़ था, लेकिन अब मुल्क में इमारती तरतीब पर 50 से ज़्यादा जगह कायम हो गई जहाँ शब जुमा एहतमाम से होती है। मरकज़ गुजुमता इस वक्त मुल्क का इमारती मरकज़ है, और वहाँ के ज़िम्मेदार का हज़रत जी राबे के साथ राब्ता है। मरकज़ निज़ामुद्दीन वाले उन्हीं से राब्ता करते हैं। दुनिया भर के मुल्क वाले अपनी जमातें गुजुमता भेजे। चंद मालदार माफिया के लोग ख़ुद को इमारती होने का दावा करते हैं, लेकिन इमारती काम को बिलजबर अपने कब्ज़े में लेने की रात दिन जस्तजू में लगे हुए हैं। अपने माल से 2-3 लोटे मरकज़ निज़ामुद्दीन में बिठाए रखे हैं, जो हज़रत जी की मंशा के बगैर अपनी तरफ से मालदार माफिया के लिए काम करते हुए पाकिस्तान की इमारती काम को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। अगर ये लोटे बाज ना आए तो हम इनके नामों का भी ऐलान कर देंगे, इसलिए कि दावती काम की हिफाजत के लिए 2-4 लोटों की काट छाट करना कोई बड़े खसारे का सौदा नहीं। आलमी मरकज़ ने बैरूनी जमात को रोके रखा है, इसलिए चंद मुल्कों की जमातें रायवंड पहुंच जाती हैं, लेकिन जब पता चलता है कि रायवंड आलमी शुरा का मरकज़ है तो वो जमातें गुजुमता पहुंच जाती है। रायवंड का इज्तिमा एक सालाना इस्लामी मेले की तरह है, जिसमें 80% मजमा आवाम का होता है। रायवंड की जमातें तुर्की, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका वगैरह में नहीं जा सकती। एक जमात रायवंड के ज़िम्मेदारों की इंग्लैंड पहुंची है, जिसमें डॉक्टर खालिद साहब जैसा शख्स भी है, लेकिन बदनसीबी से जमात मजमे के लिए तरसती है, इसलिए कि सारा इंग्लैंड इमारती काम का हामिल है। गिनती की दर्जन मसाजिद भी इन शुरा वालों के पास नहीं हैं। यही डॉक्टर खालिद साहब 5-6 साल पहले मस्तूरात की जमात लेकर आए थे। उस वक्त सारा इंग्लैंड इन्हें सर पर उठाए रखता था। मौलाना खुर्शीद साहब उस्तादों की अदब की बातें करते हैं, लेकिन अपने सगे बाप को भी ज़िंदगी भर रुलाते रहे, धक्के तक मारने से भी गुरेज नहीं किया। बाप, दादा, असातिज़ा वगैरह पर मुक़द्दम नहीं। मौलाना इब्राहिम देवला साहब और मौलाना अहमद लाट साहब ने बहुत कोशिश की अलहदा पार्टी बनाने की, यहाँ तक कि सूबे गुजरात के तबलीगी काम को 20 साल तक मरकज़ निज़ामुद्दीन से काट के रखा, लेकिन हिंदुस्तान के तबलीग वालों ने इन दोनों का साथ देने कभी तैयार नहीं हुए। लेकिन रायवंड वालों ने इन दोनों बागियों के साथ मिलकर आलमी शुरा बना दी, इसलिए रायवंड मरकज़ की वीरानी यकीनी है।
جس نے بھی مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت اور امیر کے نظام سے بغاوت کی وہ تباہ ہوا، برباد ہوا۔ اللہ کرے ہماری آنکھیں مرنے سے پہلے کھل جائیں، ورنہ بڑی تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔